So hello everyone, hope you all are doing good. Today we are going to discuss about the canonical system of classification. Since last two lectures, we are discussing about the classification of angiospermic plant. And first lecture we have already talked about Bentham and Hooker system of classification, which was the part one of classification lecture. In second lecture, we talk about Engler-Prandtl system of classification, as well as Hutchinson system of classification. Before going to the detail, I would like to have a quick reason of lecture 1 and 2. So basically, what I have told you that the entire classification of angiosperm can be divided into two: pre-Darwinian system of classification and post-Darwinian system of classification. The pre-Darwinian system classification were basically artificial and natural. Artificial means you are taking only one or two characters at a time when classifying the plant. The artificial system of classification is also known as mechanical system of classification. And in natural system of classification, you are taking main character into account. Okay. And the next was the post-Darwinian system of classification, and these all classification which were given after the discovery of the Darwin experiments and that origin of species and evolution and whole things. All systems were phylogenetic in nature, and evolution were given a particular more emphasis while classifying the plants. Okay, so this is mechanical system as same as natural system. It means only one character at a time we are taking into consideration while classifying the plant. And so Linnaeus was example, the classification given by Linnaeus was example of mechanical system or natural system. Then we have discussed the classification given by Bentham and Hooker. Okay, this is all about Bentham and Hooker system classification. And then a debate arises where the two independent schools were developed. One is the Englerian school and another one Rannellian school. Engler and Prandtl were the main propagator of this school, and according to them, the simplicity in any plant in the evolution is a primitive character, while the complexity is characteristic of advanced genus or species. This was about Englerian school, and Rannellian school was about, like, if something is simple, it is complex, it is more advanced, and if something is complex, it is more primitive. Okay, so according to Rannellian school, the evolution is retrogressive. It means come more developed to less developed, while in Englerian it's a progressive school. Primitive is more earlier and the advanced one is most modern. Then we have discussed the classification given by Engler and Prandtl, followed by the classification and 22 principle of Hutchinson. Fine. So today we are going to discuss about the Quanqui system of classification, which is very, very important. So these all are 22 principles of Hutchinson. Yeah. So here is Quanqui system of classification. Actually, Quanqui just modified the classification given by Takhtajan, but one difference which is which you can observe while going through Takhtajan system classification and Quanqui system of classification is that in Takhtajan system of classification you will find the mention of super order. Okay, like many order were combined together to form a super order. Like here you will find a super order. Okay, so देखो, the most characteristic feature of Quanqui system of classification is the indication of bubble diagram. ठीक है, ये देखो, यहाँ पे देखो, ये पूरा bubble diagram है. So basically उन्होंने क्या किया, मैग्नोलियोफाइटा को दो पार्ट में, लिलियोप्सिडा और मैग्नोलियोप्सिडा में डिवाइड किया. और ये देखो, यहाँ पे पूरे इन्होंने क्या किया कि पूरे जैसे मैग्नोलियोप्सिडा को बबल्स डायग्राम्स के थ्रू एक्सप्लेन किया, जैसे मैग्नोलियोफाइटा, हेमिमिलिड फाइडा, रोजेसी, एस्टरेडी, डेलिलिडी, कैरोफिलिडी. और इसको आप जब ऑब्जर्व करोगे तो ये आप देखो कि सबसे जो बेस में है वो आपकी प्रिमिटिव ऑर्डर होंगे, और जो सबसे
लास्ट में सबसे ऊपर है वो आपके एडवांस होंगे। और ये जो साइज आप बबल्स देख रहे हो, ऐसा नहीं है कि रैंडमली इसको ड्रॉ किया गया है। जिस ऑर्डर या जिस फैमिली में सबसे कम स्पीसीज होते हैं उनको सबसे छोटे साइज से दिखाया गया है। जैसे एस्टेरिडी या कंपोजिटी जिसका फैमिली है जिस ऑर्डर का, उसमें नंबर ऑफ स्पीसीज बहुत ज्यादा है, देखो उसको इतने बड़े से दिखाया गया है। जबकि कैरोफिली वगैरह में जो नंबर ऑफ स्पीसीज कम है उसको देखो छोटे से दिखाया गया है। ठीक है। और यहाँ देखो इन्होंने सिनॉप्टिकल अरेंजमेंट किया है सारे के सारे क्लासेस का। इट मींस जो ऑर्डर ओल्डेस्ट है उसको बेस में रखा गया और फिर कैसे उसमें इवोल्यूशन हुआ है वो दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे देख, ये लाइन से मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है कि जैसे प्रिमिटिव सबसे बेस में और एडवांस सबसे ऊपर। ठीक है। अल्दो कुछ केसेस में इवोल्यूशन जो उन्होंने पैरेलल भी दिखाया है। ठीक है। जैसे एस्टेरिडी या एस्टेरिल्स ऑर्डर में पैरेलल मतलब दो चीजें कॉमन एंसेस्टर से एक ही साथ इवॉल्व हो रही है। इस वाले केस में आप देखो क्या हो रहा है कि एक इधर इवॉल्व कर रहा है, एक उससे पहले उसके बाद इवॉल्व कर रहा है। मींस पैरेलल इवोल्यूशन नहीं है। बट कुछ केसेस में जैसे कि एस्टेरिडी में इवोल्यूशन पूरी तरह से पैरेलल हुआ है। ठीक है। और देखो उन्होंने जो मोनोकॉट है उसको भी बबल डायग्राम से दिखाया, लेकिन यहाँ पे देखो कि पूरा का पूरा जो इवोल्यूशन उन्होंने लीनियर दिखाया। जैसे यहाँ पे आप देखो डाइकॉट में तो ये इवोल्यूशन लीनियर नहीं है। ठीक है। ये इधर जा रहा है इधर जा रहा है। बट आप मोनोकॉट में देखो जो कि अरेंज किया इन्होंने, ये देखो एलिस्टेमेटेडी से लेके लिलिएडी तक ये पूरा दिखाया लीनियर इवोल्यूशन। यहाँ पे भी सेम चीजें हैं, जो सबसे बेस में होगा ये सबसे प्रिमिटिव और जो यहाँ है वो सबसे एडवांस। फाइन। और यहाँ पे देखो जो नंबर ऑफ जो साइज ऑफ बबल्स इंडिकेट करते हैं कि वन हैज लीस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज फॉलोड बाय 2 फॉलोड बाय 3 एंड 4 हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज। देखो इसमें बहुत डीप जाने की आपको जरूरत नहीं है, आपको सारे ऑर्डर भी याद नहीं रखने हैं। बट हाँ इतना याद रखना है जैसे मैग्नोलिडी में उन्होंने टोटल 8 ऑर्डर में डिवाइड किया था। उसमें वुडी को सबसे पहले रखा जिसका एग्जांपल है मैग्नोलियस, जिसका एग्जांपल है जेनरा में मैग्नोलिया। मैग्नोलिया ओके। और सबसे लास्ट में देखो यहाँ पे क्या किया, निलम्बेल्स जिसका निलंबो मेंबर है जो एक्वेटिक है। तो देखो एक्वेटिक इनके अकॉर्डिंग कॉन्क्विस्ट के अकॉर्डिंग एक्वेटिक ज्यादा एडवांस है वुडी से। सेम चीज कही थी हचिनसन ने। ठीक है। सेम पॉइंट हचिनसन ने कहा था। और इसमें देखो निलम्बेल्स ऑर्डर मेंबर कौन कौन से हैं आपके, निलम्बेसी, रननकुलेसी, पापावरेसी, मतलब सारे हर्बेसियस मेंबर और एक्वेटिक मेंबर। ठीक है। उसी तरह उन्होंने आगे हेमेमिलिडी। ठीक है। बेसिकली जो एंगुलर पेरेंटल का एमेंटिफेरी था, जो ऑर्डर आप याद करिए 1 से लेके 11 तक जो ऑर्डर था उसको एंगुलर पेरेंटल ने एमेंटिफेरी कहा था। वो सारे एमेंटिफेरी को उठा के इन्होंने क्या किया, हेमेमिलिडी में रखा जिसका एग्जांपल है कैजुरानेल्स। और दूसरा उनका जो ऑर्डर है वो है कैरोफिलिडी। एक्चुअली बेसिकली ग्रुप्स हैं, बबल्स हैं, इसमें इन्होंने 3 ऑर्डर और 14 फैमिली रखे हैं। ये आपको बेसिकली सारी चीजें याद नहीं करनी है, आपको सिर्फ जो मेजर मेजर सुपर ऑर्डर हैं, जो बड़े बड़े ऑर्डर्स हैं, उनको याद रखना है। ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स उसके हैं। जैसे देखिए रोजिडी टोटल 18 ऑर्डर, याद करना आपके लिए जरूरी नहीं है। और देखो सबसे एडवांस जो इसमें है डाइकॉट में इन्होंने रखा है एस्टेरेडियल्स को, यानी एस्टेरेसी जिसका मेंबर कंपोजिटी है। और बेसिकली ये क्या है, जो बेंथम उकर में गैमोपेटेली था ना, वो पूरे के पूरे गैमोपेटेली को क्लम्प करके इन्होंने एस्टेरिडी में रखा। और टोटल 49 फैमिलीज हैं। और इन्होंने क्या किया था कि सारे के सारे पैरासाइट्स जो हैं, जो एंजियोस्पर्म जो पैरासाइट जैसे कस्कुटा रिफ्लेक्सा, उन सबको क्या किया, कन्वोलिलेसी फैमिली से हटा के कस्कुटेसी में रखा। ठीक है। अब देखो मैग्नोलियोफाइटा 2 क्लास में, लिलियोप्सिडा, मैग्नोलियोप्सिडा। बेसिकली सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था, इसमें 64 ऑर्डर, इसमें 19 ऑर्डर। ये चीजें मैंने थ्योरी के फॉर्म में सारी चीजें लिखी हुई हैं, कैसे बबल्स डायग्राम्स में और कैसे फाइलोजेनी को इनकॉर्पोरेट किया है। तो बेसिकली आपको ना एक आउटलाइन देखो इसका याद होना चाहिए कि किस बेसिस पे इन्होंने क्लासिफाई किया, बबल्स डायग्राम्स क्या है, कैसे इंडिकेट करते हैं, इन्होंने तत्वजान के सिस्टम को कैसे मॉडिफाई किया, कैसे सुपर ऑर्डर वर्ड को रिप्लेस करके नॉर्मल इन्होंने ऑर्डर यूज किया है, कैसे जो प्रिमिटिव है उनको नीचे रखा है और एडवांस को इन्होंने ऊपर रखा है, कैसे कुछ केसेस में जैसे एस्टेरिडी में इवोल्यूशन पैरेलल हुआ है, कैसे
जो मोनोकॉट में सारे के सारे एवोल्यूशन है वो लीनियर हुए हैं, जबकि डाइकॉट में वो 1 by 1 हुए हैं। आपको सिर्फ यही चीजें याद रखनी है, जरूरी नहीं कि आप एग्जाम में सारे के सारे ऑर्डर्स लिखो। ये नोट्स पूरा मैंने इसी को एक्सप्लेन किया है पूरा, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैंने ये नोट्स डाल लिया है, तो आप वहां भी देख सकते हो, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर क्लासिफिकेशन। एक डायग्राम ऑन थॉर्न बचा है, तो वो मैं ट्राई करूंगा, शॉर्ट लेक्चर होगा, उसको मैं एक 10-15 मिनट के लेक्चर में कंप्लीट कर लूंगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर देना।